Hello students, welcome to your computer class. We were on the chapter 2, types of the software. In types of software we had covered the system software. We saw BIOS, operating system, translator, utility and library programs. All. Now we are in application software, and in application software we had covered the general purpose one. Means what is the application software? Software is just written for a particular purpose and always run on a operating system, on any operating system. Okay. So general purpose one, it is written for the general. So general one means for all, means anyone can use the software, not for a specific customer. Means anyone whose need is fulfilled by the software can use the software. Those who write the software in his mind, not a particular person, not a specific person, general need for all, common for all, that is the generalized one. इसमें आपका MS Word, ऑफिस में काम आने वाले सारे फीचर्स उसमें होते हैं. स्प्रेडशीट वन, एक्सेल. स्प्रेडशीट मीन्स डेटा को एनालिसिस करनी हो, स्टोर करना हो, स्प्रेडशीट वाली वर्किंग, चार्ट बनाना है, एनालाइज करना है, तो वो सारे काम, वो सारे फीचर आपको, मतलब कैलकुलेशन परफॉर्म करना है डेटा पर, तो वो सारे फीचर आपका MS Excel प्रोवाइड करता है. डेटाबेस, MS Excel, Oracle and all, general purpose one, general, specific नहीं, doing a common work, general one. Now come to the next topic, that is the specific purpose application software, or you can say the customized one. Customized means it is written for a particular customer. Customized means written for a particular work, not for all working in a one field, all such type of working. No, written for a specific work, means the software is doing specific work, that is specific purpose software. ठीक है. Specific purpose software, specific purpose application software. Specific purpose means written for a particular work, not the general work. Specific work means doing this work, means doing this only, not for all working. ठीक है. First one is the accounting. अकाउंटिंग में आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जितने भी आते हैं वो सारे के सारे आपके मीन्स रिक्वायरिंग एनालिसिस, प्लानिंग, अकाउंट मैनेजमेंट. इट इज रिटन फॉर अकाउंट मैनेजमेंट. इसमें आपका बिजी, टैली, मार्क, क्विक बुक, ऑल. सेकेंड वन इज द रिजर्वेशन सिस्टम. Now keep in the mind, railway reservation system. ठीक है. Now the software जिसकी हेल्प से आप रेलवे में सीट बुक करते हैं या सीट रिजर्व करते हैं, that software is written for the particular need of Indian Railway only. Right? जो आपकी इंडियन रेलवे में रिजर्वेशन में जितने काम हो सकते हैं उस सारे काम की नीड के अकॉर्डिंग वर्क करता है. अब नाउ हाउ इट इज स्पेसिफिक, हाउ इट इज कस्टमाइज्ड. स्पेसिफिक मीन्स इट इज डूइंग द रिजर्वेशन वर्क ओनली. Reservation means not the reservation only. You can see your reservation. You can see the railway timetable. कौन सी ट्रेन कब किस समय कहाँ से कहाँ जा रही है, दो स्टेशन के बीच में क्या कौन कौन सी ट्रेनें हैं. ऑल द वर्क कम इन द रिजर्वेशन वन.
related to the reservation one. Reservation, cancellation, fees returning, all the work related to the reservation, that is the specific, means specific for the reservation work. The second one is the customized. Customized means it is written for a specific customer, particular customer, that is Indian Railway. इंडियन रेलवे के अलावा और कोई दूसरा इस हमें, अगर हम पर्टिकुलर इंडियन रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उस सॉफ्टवेयर को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूसरा कस्टमर, मीन्स यू कैन नॉट यूज दैट इन द फ्लाइट रिजर्वेशन. इंडियन रेलवे का रिजर्वेशन का जो भी वर्क है वो अलग है, फ्लाइट रिजर्वेशन की वर्किंग अलग है. तो इंडियन रेलवे वाला सॉफ्टवेयर आप फ्लाइट रिजर्वेशन में नहीं यूज कर सकते. सेम इंडियन रेलवे वाला सॉफ्टवेयर किसी और कंट्री में भी रिजर्वेशन में नहीं यूज हो सकता, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंडियन रेलवे की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे वर्किंग होती है उस अकॉर्डिंग लिखा गया है. दूसरे कंट्री में अलग तरीके से वर्किंग होती है, तो सेम सॉफ्टवेयर वहां पर नहीं काम करेगा. तो दैट इज द कस्टमाइज. कस्टमाइज मीन्स रिटन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर. इंडियन रेलवे के लिए लिखा गया है और इंडियन रेलवे के अलावा कोई भी दूसरा कस्टमर इस सॉफ्टवेयर उसके मतलब का ही नहीं है, कोई नहीं यूज कर सकता. ठीक है, तो दिस इज द स्पेसिफिक वन एंड कस्टमाइज्ड बोथ. स्पेसिफिक मीन्स रिटन फॉर ओनली रिजर्वेशन वर्किंग एंड कस्टमाइज मीन्स रिटन फॉर द इंडियन रेलवे कस्टमर ओनली. राइट. Human resource management, HR management. HR मैनेजमेंट में वो सॉफ्टवेयर जो किसी ऑफिस में जितने एम्प्लॉय हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करे. रिकॉर्ड में उनका सैलरी मेंटेनेंस और कब ज्वाइन किया, कितने साल हो गए और क्या रैंक है, किस पोस्ट पे है, ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला जो सॉफ्टवेयर है दैट इज द HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम. दैट इज द स्पेसिफिक वन. इट इज वर्किंग ऑन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओनली. ठीक है, नॉट डूइंग द अदर वर्क. नाउ द फोर्थ वन इज द अटेंडेंस. अटेंडेंस मैनेजमेंट. अटेंडेंस मैनेजमेंट मीन्स देखिए दो वर्ड है, स्पेसिफिक एंड कस्टमाइज. ठीक है, अ सॉफ्टवेयर मे बी अ स्पेसिफिक, कस्टमाइज्ड बोथ. ठीक है, मे बी अ सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिक ओनली, नॉट द कस्टमाइज्ड वन. द पर्टिकुलर कस्टमर के लिए लिखा गया है नहीं, बट डूइंग द स्पेसिफिक वर्क. Attendance management software is the specific one, not the customized. मतलब एक कंपनी में अगर वो अटेंडेंस मेंटेन कर रहा है तो वो दूसरे कंपनी में भी अटेंडेंस मेंटेन करने का काम कर रहा है. दैट इज द स्पेसिफिक वन. मीन्स डूइंग द अटेंडेंस मैनेजमेंट ओनली बट नॉट फॉर द पर्टिकुलर कस्टमर ओनली, कैन वर्क फॉर द अदर कस्टमर टू. राइट. अटेंडेंस मैनेजमेंट. अटेंडेंस मैनेजमेंट वो सॉफ्टवेयर जो एम्प्लॉय की अटेंडेंस को मैनेज करने का काम, मतलब महीने में किस दिन आया, किस दिन नहीं आया, एक मंथ में कितने दिन उसकी अटेंडेंस हुई, कितने दिन एब्सेंट रहा, दैट इज द अटेंडेंस मैनेजमेंट. अब ये जो सॉफ्टवेयर है दैट इज नॉट द प्रोग्राम ओनली. केवल एक प्रोग्राम से आप किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं. इट इज रिलेटेड टू द हार्डवेयर ऑल्सो. ठीक है, तीन टाइप की, मतलब अटेंडेंस मैनेजमेंट में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से आप अटेंडेंस मैनेज करते हैं. तो अटेंडेंस मैनेजमेंट में फर्स्ट वन इज द स्मार्ट कार्ड रीडर. Second one is the fingerprint reader. And the third one is the proximity. What is this?
फर्स्ट टू इज रिलेटेड टू द हार्डवेयर वन. ठीक है. फर्स्ट वन means the company is given a smart card to each employee and there is the smart card reader. When the employee come in the company, it just stuck its card and card reader read its card information, means who is the employee, what is the ID of the employee, and make the attendance. This is the present on this date and time. Store the employee ID, date and time in the database. मीन्स ये एम्प्लॉय इस डेट और इस टाइम को इस दिन कंपनी के अंदर आया. जाते समय फिर से कार्ड डिटेल लगाया, फिर से डेट टाइम मेंटेन हो गया आईडी के साथ कि इस ये आईडी ये एम्प्लॉय इस दिन इस टाइम बाहर गया. तो ये जो मेंटेनेंस हो रहा है अटेंडेंस का यूजिंग द स्मार्ट कार्ड, और वो स्मार्ट कार्ड रीडर उस कार्ड की इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है. बाकी काम तो सॉफ्टवेयर कर रहा है, बस दिस हार्डवेयर इज नीडेड. ठीक है. फिंगरप्रिंट रीडर. फिंगरप्रिंट रीडर आप लोग में जो पुराने स्टूडेंट हो उन्होंने अपने स्कूल में भी देखा होगा. देयर इज वन फिंगरप्रिंट रीडर. यहाँ पर आपकी थंबनेल की जगह होती है, एम्प्लॉय आके अपना थंब लगाता है. ठीक है. ईच employee has unique fingerprint, right? फिंगरप्रिंट लगाया तो उस फिंगरप्रिंट के करस्पॉन्डिंग हु इज द एम्प्लॉय ये कंपनी सर्च करती है, और उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डेट एंड टाइम इज स्टोर्ड. एम्प्लॉय ने अपना आईडी नहीं डाला है, सिर्फ अपना फिंगरप्रिंट लगाया है. सेम ईयर सिर्फ अपना कार्ड लगाया था, कार्ड में उसकी आईडी और उसकी इंफॉर्मेशन में स्टोर थी. सेम आपके फिंगरप्रिंट में विच इज यूनिक वन, थंबनेल आपने लगाया विच इज द यूनिक वन. उस फिंगरप्रिंट के करस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर ने सर्च किया हु इज द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय मिला, वो एम्प्लॉय इस डेट इस टाइम को इन हुआ या आउट हुआ, ये स्टोरी. दैट इज द अटेंडेंस मेंटेनेंस. प्रॉक्सिमिटी रीडर, दिस इज समथिंग डिफरेंट वन. इसमें आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एम्प्लॉय की अटेंडेंस बिना एम्प्लॉय के किसी भी फिजिकल इंटरैक्शन के वो मेंटेन कर लेता है. कैसे? इट जनरेट अ प्रॉक्सिमिटी. जैसे अगर एम्प्लॉय अराउंड हफ्ते में 6 दिन नहीं आ रहा है या 2 दिन अप्रॉक्स, तो इट मेंटेन द अप्रॉक्स कि ही विल बी प्रेजेंट और नॉट. अप्रोक्सीमेशन इज जनरेटेड by this one and maintain the employee is present or the absent, right? Sense an employee within his proximity and the marks the presence present or absent. Now accounting हो गया, payroll. I think it's the 5th one, payroll. Payroll is the specific one which maintain the employee's salary. Means अगर employee इस महीने में इतने दिन आया, उसकी सैलरी अगर मंथली बेस पे कैलकुलेट होती है तो क्या बेसिक में कितना HRA, कितना DA, कितना TA मिलता है, उस बेस पर नेट उसकी ये बनी. अगर एम्प्लॉय डेली बेस पर आता है तो इतने दिन प्रेजेंट हुआ तो एक दिन की इतनी होती है, तो इतने दिन की इतनी हुई, इतनी बनी. तो ये मेंटेन करने वाला सॉफ्टवेयर पेरोल यानी सैलरी कैलकुलेट करने वाला सॉफ्टवेयर. आप क्या डालते हैं? आप तो डालते हैं ये सॉफ्टवेयर में ये एम्प्लॉय है, इसकी बेसिक ये है, इसको इतने परसेंट HRA, इतने परसेंट DA, इतने परसेंट TA मिलता है. ठीक है. फिर वो कैलकुलेट करेगा कि अटेंडेंस इतनी है,
अगर अटेंडेंस इतनी है तो अगर इसमें अगर उसके जो उसने लीव ली अगर विद इन उस लिमिट में आती है तब तो नहीं आती है तो कितने पैसे कटे, कितने बचे हुए दिन की कितनी सैलरी बनी, है जो कैलकुलेशन वाला काम है दैट वर्क मेंटेन बाय द पेरोल। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जैसे आप किसी फैक्ट्री में कोई मटेरियल आया, प्रोडक्ट कोई बना रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी मटेरियल आए, कितना बना, कितनी सेल हुई, दे ऑल कम इन द इन्वेंट्री वन। ठीक है, कितना मटेरियल आया, स्टॉक में कितना है, कितना यूज हुआ और कितना और आना है, कब और आना है, ये सारा मेंटेनेंस का काम इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट करता है। बिलिंग सिस्टम, बिलिंग सिस्टम इज मेंटेन इन अ शॉप या स्टोर शॉप या इस तरह के इसमें भी जहाँ पे बिलिंग वाला काम होता है। मीन्स अ पर्सन परचेज सम आइटम, व्हाट इज द, जितने भी आपके वी मार्ट और क्या बिग बाजार और वे सब है, वहाँ बिलिंग कस्टमर का वो डाला, कार्ड कस्टमर का नहीं, प्रोडक्ट का कार्ड डाला पर ये कौन सा आइटम है, इसकी प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी खरीदी, क्या आइटम हुआ, अगला वाला अगला वाला अगला वाला, मेंटेन टोटल कितना हुआ, ये सारा काम जो सॉफ्टवेयर करता है दैट इज द बिलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन, आपका मोबाइल भी तो समझिए क्या सकते हैं आप, कंप्यूटर ही है, उस पर जितने भी ऐप आपको दिखाई पड़ते हैं दे ऑल आर द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और वो सारे ऐप एप्लीकेशन किसी न किसी ओएस पे रन होते हैं। मोस्ट ऑफ द मोबाइल हैज द एंड्रॉयड एंड अदर ऑल्सो। ठीक है, तो ओएस के ऊपर रन होने वाले मोबाइल के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला नेटिव ऐप, दूसरा वेब ऐप और तीसरा हाइब्रिड। नेटिव ऐप मीन्स रिलेटेड टू द पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका आईफोन है, आईफोन में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है और नॉर्मल फोन में एंड्रॉयड यूज हो रहा है। ठीक, अब अगर कोई सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड के लिए लिखा गया है तो वो आईफोन पे नहीं चलेगा, और अगर आईफोन के लिए लिखा गया है तो वो एंड्रॉयड पे नहीं चलेगा। मीन्स द सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर अ पर्टिकुलर ओएस विल नॉट रन ऑन द अदर ओएस, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द नेटिव वन। आईफोन के लिए लिखा गया सॉफ्टवेयर सिर्फ आईफोन पे चल रहा है, एंड्रॉयड के लिए लिखा गया सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड पे चल रहा है, एंड्रॉयड वाला आईफोन पे नहीं चल रहा है और आईफोन वाला एंड्रॉयड पे नहीं चल रहा है, तो दैट सॉफ्टवेयर इज द नेटिव वन। वेब ऐप, वेब ऐप कौन से एप्लीकेशन होते हैं जो आपके फोन पे जो वेब का ब्राउजर है उस पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी आपको अपना बैंक का कुछ देखना है या एनीवन, ठीक है, आपने ब्राउजर खोला, ठीक है, अब उस ब्राउजर पर मान लीजिए आपने अपना बैंक का ही काम करना है, बैंक का वो खोल लिया, या आजकल कौन सा कोविन ऐप चल रहा है, कोविन ऐप खोल, नॉट ऐप, कोविन पोर्टल खोला, या अपने स्कूल की साइट खोली, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर इट इज रिलेटेड टू द ब्राउजर। अब आईफोन का अलग ब्राउजर है और एंड्रॉइड का अलग ब्राउजर है, तो सेम ऐप इधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है, बिकॉज दिस इज द वेब ऐप। इधर वाले इधर के ब्राउजर पे चल रहा है, इधर वाला उधर के ब्राउजर पे चल रहा है।
browser is running both the app with a single one. That app is called the web app. Web app means which run on a web browser. दोनों फोन पर ब्राउजर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐप एक ही है जो इस वाले ब्राउजर पर अलग रन हो रहा है, इस वाले ब्राउजर पर भी रन हो रहा है, इस वाले ब्राउजर पर भी रन हो रहा है. दैट इज द वेब ऐप. Hybrid app which is the combination of native and web. Combined one, in middle one. It may be the cross platform. मीन्स वो ऐसा भी हो सकता है कि वेब पे ब्राउजर पर भी चले, स्टैंड अलोन भी चले. क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स वो ऐप जो आईफोन पे भी चल रहा है, एंड्रॉइड पे भी चल रहा है, उस ऐप को हाइब्रिड ऐप बोलते हैं. ठीक है. सफिशिएंट वन. योर चैप्टर इज completed now. Okay, thank you.